السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات اللهم صل على محمد سورہ ملک قرآن مجید کا 67واں سورہ مبارک ہے، 67، اور یہ اس کی ابتدائی آیتوں کے الفاظ مبارک ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. اور تفصیلاً اگر آئے ان تمام الفاظ مبارکہ پر غور کیا جائے تو ایک لفظ عنوان نظر آتا ہے. جو ظاہر قرآن مجید کا ایک لفظ عنوان زندگی ہے، ساری زندگی کو سمویا ہوا ہے، سمیٹا ہوا ہے. لیکن خصوصیت سے اگر آیتوں پہ غور کیا جائے تو ایک آیت تو عنوان گفتگو ہوتا ہی ہے، اور خصوصاً مجلس اعضا کی مناسبت سے شاید کبھی آپ سے اس حوالے سے بات بھی ہوئی ہو، اور آپ خود بھی ظاہر ہے اس کے بارے میں فکر رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیہ مبارکہ ہو وہ کربلا سے مربوط ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بڑی فضیلت ہے واقع کربلا کی، اور ان مجالس کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھنا ایسی بات سے بات آ گئی تو بتاہی میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے کہ کتنی بڑی سعادت ہے جو ذکر حسین کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت مسلسل ہوتی جا رہی ہے، مسلسل ہوتی جا رہی ہے. اول تو اس بحث میں کوئی جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امام علی مقام تو خود قرآن کے ترجمان ہیں، مترجم قرآن ہیں، قرآن کی تشریح کر رہے ہیں، سب کچھ قرآن کے لیے دے دیا. تو وہ اب دیکھیں کیا فضیلت امام علی مقام ہے کہ جہاں جہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے وہاں وہاں تلاوت قرآن مجید بھی ہوتی چلی. یہ ہم ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں مجلس حسین ہو رہی ہے، جہاں جہاں مجلس عزا ہو رہی ہے، جہاں جہاں ذکر کربلا ہو رہا ہے، بلکہ جہاں جہاں ذکر محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ وہاں تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھے، اتنے قرآن پڑھو، اتنوں کا ثواب پہنچے. ظاہر ہے بڑی اچھی بات ہے، اور ظاہر ہے اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ذکر حسین کی مناسبت سے اگر ہم کہنا چاہیں کہ اتنے قرآن پڑھے گئے، اتنے قرآن پڑھے گئے، تو ہم اس گنتی کو محدود نہیں کر سکتے ہیں. کہاں کہاں آیات قرآنی کی تلاوت کی گئی. عام مشاہدے کی بات میں بیان کر رہا ہوں کہ کوئی ذاکر ہو، کوئی خطیب ہو، اس کو کسی بھی نام سے آپ پکاریں، آپ اسے عالم کہیں، آپ اسے مقرر کہیں، آپ اسے علامہ کہیں، خطیب کہیں، ذاکر کہیں. ذاکر بہرحال ذاکر ہوتا ہے. یہ تفریق تو ہم نے پیدا کر دی ہے، کسی کو ذاکر کہہ دیتے ہیں، کسی کو خطیب کہہ دیتے ہیں. حالانکہ خطیب بھی ذاکر ہے اور ذاکر بھی ذاکر ہے. درود پر محمد و آل محمد. تو خواہ وہ کوئی بھی خطیب ہو، کوئی ذاکر ہو، کسی بھی نام سے پکارا جائے وہ، لیکن اس کا تذکرہ جو ہے، ذکر جو ہے، اس کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کو عنوان گفتگو قرار دیتا ہے.
उसकी तफसीर बयान होती है, उसकी तफसील बयान होती है, उसकी तशरीह बयान होती है, उससे रब पैदा किया जाता है। तो ये इस लिहाज से कुरान मजीद की कितनी आयतों की कहाँ कहाँ तिलावत हो रही है। तो मजलिस अज़ाए हुसैन की निस्बत है ज़िक्र खुदा से, ज़िक्र इलाही से और तिलावत कुरान मजीद से। और कोई भी आयत मैंने कहा वो करबला से ऐसा रब पैदा कर देती है कि हर आय मुबारका को उन्वान मजलिस हुसैन बनाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्ले अला हर आय कुरानी को ज़ाहिर मैं एक तालिब इल्म के तौर पर अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर आय कुरानी को उन्वान ज़िक्र हुसैन बनाया जा सकता है। अगर तौहीद का तज़किरा हो तो करबला में है, अगर रिसालत का तज़किरा हो तो करबला में है, अगर नमाज का तज़किरा है तो करबला में है, इबादत का तज़किरा है तो लिसान हक का तज़किरा है तो करबला। कुरान के मज़ामीन को हम मुज्तमा नहीं कर सकते अपने तालिब इल्माना सोच के मुताबिक, लेकिन आप तफसीर में अगर जाके देखें तो जो उन्वान कुरान होगा वो उन्वान करबला, जो उन्वान कुरान है वो उन्वान करबला है। और वहाँ ज़िक्र हुसैन को रास्ता मिलता है, हमारी ज़बानों को अल्फाज मिलते हैं, हमारी ज़बानों को फ़िक्र मिलती है, हमारे जुमलों का रब्त मिलता है, हमारी तमाम तर फ़िक्र को रास्ते मिलते हैं। तो ये सब तिलावत कलाम मजीद से उसका आगाज़ होता है। और क्यों ना हो, क्योंकि इमाम आली मकाम की शान तिलावत को तो हम कभी पहुँच ही नहीं सकते। इमाम आली मकाम की शान तिलावत जो मुझे अलग मज़मून है, इमाम का अंदाज़ तिलावत, उनका कुरान मजीद का पढ़ना, ये तो खुद एक उन्वान गुफ्तगू, उन्वान फ़िक्र है और हमारी मजलिसों का उन्वान मुसलसल है। लेकिन तफसील से इस पर गौर किया जा सकता है, तहकीक की जा सकती है, मुताला किया जा सकता है। लेकिन मुख्तसरन हम बयान करते रहते हैं और क्या करना भी चाहिए कि कौन सा मकाम है कि जहाँ हुसैन तिलावत कलाम पाक ना कर रहे हों। मैं इख्तिसार से बयान कर रहा हूँ, अगर मदीने से आ रहे हैं तो तिलावत कलाम पाक हो रही, आयात के हवाले दिए जा रहे हैं। मक्का मुकरमा पहुँच रहे हैं तो वहाँ आयात के हवाले आ रहे हैं, मक्के से रवाना हो रहे हैं तो आयात के हवाले आ रहे हैं। ये पूरा उन्वान है। और अगर आप रास्ते में देखें जगह जगह आयात कुरान मजीद की तिलावत करते जा रहे हैं और खुसूसन मौत व हयात के हवाले से लोगों को बताते जा रहे हैं कि ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, मौत में से ज़िंदगी कैसे तलाश की जाती है। ये हुसैन बताते जा रहे हैं कि मौत को हयात अबदी में कैसे तब्दील किया जाता है, मौत के सामने सीना सिपर कैसे हुआ जाता है, मौत के सामने अज़्म समीम रखना कैसे होता है, और मौत जब सामने हो तो फिर सिपाह अपने तमाम तरह अपने साथियों का इंतखाब कैसे होता है। अगर जवान मुंतखब किए जाते हैं तो हबीब इब्न मज़ाहिर जैसे जवान मुंतखब किए जाते हैं। ये जवान है, ये जवाना ने करबला है, ये जवान करबला है। हबीब इब्न मज़ाहिर के से 9 साल पे ना जाइए, उनकी फिक्र जवान को देखते जाइए, उनके अज़्म जवान को देखते जाइए। हम तो उसका ताल्लुक से 9 साल से कर देते हैं ना, लेकिन वहाँ आज़म से जवानी जाए। वहाँ भी आपने पढ़ा, वहाँ तो ममता से आप देखें ना किस अंदाज से, किस किस मोहब्बत से वहाँ जवान साल सामने आ रहे हैं। तो मैं तो हबीब इब्न मज़ाहिर को भी जवां साल कह रहा हूँ, वहाँ तो ज़ुहैर बिन कैन भी जवां साल नजर आ रहे हैं, वो तो सारे साथी। तो वो फिर कुरान मजीद की तिलावत रास्ते में हर मकाम पे, हर मंजिल पे करते चले जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं कि हम तिलावत कुरान। और इख्तिसार से कहा जाए, अरे और तो और हुसैन तो खैर तिलावत कर रहे हैं जब सामने आ रहे हैं, लेकिन जब नेज़े पे सर आ रहा है तो वो भी तिलावत कर सकते हैं। यह है शान तिलावत हुसैन, तिलावत कुरान मजीद के जहाँ जहाँ शान तिलावत इमाम नजर आ रही है। तिलावत कुरान यानी शान तिलावत इमाम की अपना एक अलग उन्वान तहकीक है, उन्वान गुफ्तगू है। सोचें और गौर करें, लिखें और पढ़ें, बात करें, उस पर गौर करें कि क्या शान है तिलावत की। और यही असर है उनकी तिलावत का कि जहाँ जहाँ ज़िक्र हुसैन है वहाँ वहाँ तिलावत कुरान मजीद होती चली जाए। तो एक एक लफ्ज़ उन्वान है मजलिस का, एक एक आयत उन्वान है इमाम आली मकाम के ज़िक्र का। जहाँ जहाँ मजलिसें हो रही हैं वहाँ तिलावत कुरान मजीद हो रही है। लेकिन जब हम खुसूसियत से किसी आयत की तिलावत करते हैं तब भी एक एक लफ्ज़ कुरान की आयत का उन्वान गुफ्तगू नज़र आता है। इसी आयत मज़कूरा में एक एक लफ्ज़ सामने आ रहा है कि अगर तबारकल्लज़ी पे गुफ्तगू की जाए तो वो उन्वान है कि क्या बरकतें हैं, क्या अज़मतें हैं, क्या तक़द्दुस है, क्या तबरीक है, क्या तक़द्दुस तक़दीस है उसकी। ये सारा खुद एक उन्वान है, एक फ़िक्र का रास्ता है। और आगे बढ़े तो फिर ये मालूम होता है कि हाँ अल्लाह का हाथ क्या है। अभी आपने देखा ना कि क्या सखावत है उस हाथ में, क्या हाथ है कि देखें कुरान ने कह दिया कि तबारकल्लज़ी के अल्लाह की ज़ात इतनी बाबरकत है कि उसके हाथ में मुल्क है, उसके हाथ में मुल्क खुद एक मजमून है।
मुल्क बच्चे तो कंट्री को कहते हैं ना, मुल्क हम सब जो हज़ारे लफ्ज़ी तर्जुमा कर देते हैं तो वो तो एक मुल्क है, हम मुल्क को कह देते हैं, वतन को कह देते हैं, कंट्री अंग्रेजी में आम लफ्ज़ अगर कहा जाए ज़्यादा मुनासिब हो, लेकिन मुल्क तो खुद एक वसी इस्तिलाह है। मुल्क ताकत है, मुल्क इख्तियार है, मुल्क इख्तियार है, मुल्क हुकूमत है, मुल्क सल्तनत है। मुल्क इंसान के लिए एक अजमतों और शान और शौकत की अलामत है। तो इसलिए जब कहा कि उनके हाथ में मुल्क है, अब जब कहा गया अल्लाह के हाथ में मुल्क है, तो फिर डॉक्टर साहब के मजमून से करीब तर होने की कोशिश करूंगा, तो फिर वहां पे मालूम करना पड़ेगा कि कौन है जो अल्लाह का हाथ है। दुरूद पर मोहम्मद ये बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में मुल्क है, जिसके हाथ में मुल्क है। अब हाथ के अपने मानी बहुत से नजर आ जाएंगे आपको, लेकिन जब इस्तिलाहन इस्तेमाल किया जाएगा तो ज़ाहिर है वो तो जिस्म जिस्मानियात से बिल्कुल बालातर है, उसके लिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि मुहावरे में इस्तेमाल होता है, अल्लाह के बड़े बड़े हाथ हैं, अल्लाह के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जब हम हाथ का हवाला दे रहे हैं तो फिर मालूम हो जाता है कि हाथ कौन से हैं, वो हाथ क्या है, अल्लाह का हाथ कौन सा है। अल्लाह का हाथ वही है जहाँ के मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला उससे इतना करीब हो रहा है कि अल्लाह ताला उसके नफ्स को खरीद रहा है, अपनी मर्जी से अता कर रहा है। दुरूद पर मोहम्मद। फिर वहाँ यदुल्लाह की मंजिल आ जाती है, यदुल्लाह की मंजिल आ जाती है, और वो यही है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ये मैंने एक इस्तिलाहन बात आई तो कहता चलूँ, लेकिन हाथ के मानी बहुत से हैं, हाथ के मानी बहुत से हैं। तो अल्लाह ताला वहाँ कह रहा है कि उसके हाथ में मुल्क है, और जब मुल्क है तो महज वो मुल्क किसी जोग्राफियाई हुदूद का नाम नहीं है, बल्कि मुल्क ताकत का नाम है। दुरूद पर मोहम्मद। तो बाबरकत है वो ज़ात मोहतरम ज़ात इलाही जिसके हाथ में मुल्क है। और कुरान मजीद की एक ख़ास ये ज़ाहिर है, आप खुद अंदाज़े तिलावत आपका अपना है और आप खुद उस पर गौर करते रहते हैं, तो सोचिएगा ये कुरान मजीद का जो लहजा है, मैं तो लहजे अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो अंदाज़ है, उसमें बड़ी खूबसूरत बात यह है कि एक आयत सवाल उठाती है, दूसरी आयत उसका जवाब देती है। ये बड़ी देखें, बड़ी मैं अपने मुशाहिदे तजुर्बे के मुताबिक मुझसे बेहतर तिलावत करने वाले यहाँ तशरीफ फरमा हैं, तो एक आयत सवाल उठाती है और दूसरी आयत उसका जवाब देती है। तो फौरन कहा कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, उसके हाथ में मुल्क है, और कितनी बाबरकत है वो ज़ात खुदाबंदी। और फिर ये कहा कि हाँ वो वही है कि वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि वह हर शय पर कुदरत रखता है, हर शय पर कुदरत रखता है। और क्या कुदरत रखता है, कितनी कुदरत रखता है कि वो वही है कि जिसने मौत व हयात को खलक किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, क्या मज़मून दे दिया कि मौत व हयात को खल्क किया है उसने। और फौरन सवाल पैदा होता है क्यों खल्क किया, तो फिर फौरन कहा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आजमाए, देखे, परखे, जांचे। और ज़ाहिर है जांचना भी हमारे लिए, उसको तो सब इल्म है, हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए वो आजमाए, ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और ये देखे और परखे और ये बताए कि वो कौन है कि जिसने अमल अहसन अंजाम दिया, वो कौन है कि जो अमल अहसन अंजाम दे रहा है। और ये क्यों, फिर फौरन उसके अल्लाह की शान बयान की जा रही है, वहुवल अजीजुल गफूर। वाह, क्या बात है कि अब अजीज भी है और गफूर भी है। अजीज के माना हमारे यहाँ तो आम लुगत में और इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बार मानवियत वहीं से जाके मजबूत हो जाती है, तो इसके माना गालिब के हैं, ताकत वाला है, सबसे बड़ा है, वो बरतर है, वो ताकत वाला है, वो गालिब है, वो गालिब है। तो वहुवल अजीजुल गफूर। लेकिन गलबे के साथ फौरन क्या, एक देखिए ये है शान इलाही, ये शान इलाही है कि वो गालिब भी है और बख्शिश करने वाला। ये देखिए ना, ये इंसान को पैगाम दिया जा रहा है कि तुम, मैं ये नहीं, ठीक है जहाँ जहाँ आपको किसी बात पे कायम रहना होता है तो अंदाज आपका और हो जाता है, लेकिन आपकी जो बख्शिश वाली बात है ये नहीं मुतासिर होनी चाहिए। ये है पैगाम इलाही कि देखो वो अजीज भी है, यानी वो गालिब भी है, वो ताकत वाला भी है, और वो बख्शिश करने वाला भी है, वो गफूर भी है, वो रहीम भी है,
وہ رحم کرنے والا بھی ہے. یہ ساری باتیں جب سامنے آتی تو پھر اللہ کی طاقت سامنے آتی ہے. علامہ اقبال کا بڑا مشہور سا شعر ہے, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں, آپ بچوں کو بھی یاد ہوگا, سبھی کو یاد ہے. لیکن جب ہم, ظاہر ہے میں نہیں کہتا کہ بہت میں کوئی بڑا قابل ہو گیا, لیکن کبھی بچپن میں جب پہلی دفعہ یہ شعر سنا تھا تو بہت سوچتے تھے ہم, یہ کیسے, یہ تو ساری شان اللہ کی ہے. آپ کے ذہن میں وہ شعر آ رہا ہوگا کہ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت. جب ہم پڑھتے تھے شروع میں تو سوچتے تو ساری اللہ کی خوبیاں ہیں, اور لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 عناصروں تو بنتا ہے, قہاری, غفاری, قدوسی, جبروت. جبروت بھی آ گیا اس میں, قدوس بھی آ گیا, قہاری بھی آ گیا, غفاری بھی آ گیا, سب آ گیا. تو انسان کی عجیب منزل ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں منزل بلندی انسان نظر آتی ہے جہاں ساری خوبیاں یکجا ہو جائیں, جہاں ساری خوبیاں یکجا ہو جائیں. اس لیے ہم انسانیت کو شعبوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. انسانیت کو ہم اس طرح ڈپارٹمنٹس میں یا کمپارٹمنٹس میں نہیں بانٹ سکتے کہ یہ انسان غصے والا اچھا ہے, یہ انسان جنگ میں اچھا ہے, یہ انسان امن میں اچھا ہے, یہ لکھتا اچھا ہے, یہ بولتا اچھا ہے, یہ میدان جنگ میں اچھا ہے, یہ گھر میں اچھا. نہیں, ہمیں کلیت کے ساتھ دیکھنا ہے, ہمیں کلیت کے ساتھ دیکھنا ہے, ہمیں ان ٹوٹیلٹی دیکھنا ہے. جب ان ٹوٹیلٹی ہم تلاش کرتے ہیں تو پھر ہماری نگاہ جو جستجو, ہماری نگاہ مطالعہ ایک ایسی شخصیت پہ ٹھہر جاتی ہے جہاں کے ایمان کامل کی منزل آ جاتی ہے, کل ایمان کی منزل ہوا. یہ ہے کیفیت کہ اگر لکھنے میں ہے تو لکھنے کا معاملہ ہے, اگر بولنے میں ہے تو بولنے کا معاملہ ہے, اگر خطبے میں ہے تو خطبات بالکل اول سے اول نظر آ رہے ہیں, اگر معاملات خانہ ہے تو اس میں اولیت نظر آ رہی ہے, اگر مہمانوں میں ہے, ساتھیوں میں ہے, غلاموں میں ہے, خادموں میں ہے تو اس میں واقعات کی ایک ترتیب چلتی چلی جا رہی ہے. اگر میدان جنگ میں ہے تو معلوم ہوتا ہے یہاں پہ کبھی کسی ماحول میں یہ جملہ زبان پیدا ہو گیا تھا, تکرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میرے بہت سے یہاں میرے بزرگ, میرے سامنے بزرگ, میں یعنی علمی لحاظ سے کہہ رہا ہوں, عمر کے لحاظ سے تو میں بھی بزرگ ہو گیا, لیکن میں بالحاظ علم کہہ رہا ہوں اور تجربہ اور مشاہدہ کہہ رہا ہوں, مجھ سے زیادہ بزرگ یہاں تشریف فرما ہے. تو کبھی یہ جملہ آ گیا تھا زبان پہ, مولا کی عطا ہوتی ہے, ابھی انہوں نے کہا عطا بھی حل عطا سے ہوا کرتی ہے, تو واقعی وہ عطا ہے. کبھی کہا تھا کہ یہ شخصیت کلیت وہاں ہوتی ہے جہاں متضاد قوتیں آپ کو یکجا نظر آ جائیں. جہاں متضاد قوتیں یکجا ہوں تو پھر وہاں پرسنالٹی کی کلیت ہوا کرتی ہے. وہاں ہیومن پرسنالٹی یا کوئی بھی پرسنالٹی, ڈیوائن پرسنالٹی جو بھی آپ کی کلیت میں حامل ہوتی ہے وہ قابل احترام نظر آنے لگتی ہے, وہ قابل مشاہدہ, قابل مطالعہ اور قابل تقلید بھی کہہ سکتا ہوں. تقلید میں عام معنوں میں کہہ رہا ہوں, اس کو اپنانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ کلیت کی حامل ہوتی ہے اور وہ مختلف تمام تر صفات وہاں سامنے آ جاتی ہیں. تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں اگر میدان جنگ میں آ رہا ہے تو وہاں بھی سپہ سالار بن کے آ رہا ہے, وہاں بھی علمدار بن کے آ رہا ہے. اگر وہ تمام تر مقامات پہ اگر امن کے مقام پہ آ رہا ہے, سلو کے مقام پہ آ رہا ہے, تو وہاں وہ کاتب سلو نامہ بن کے آ رہا ہے. لیکن یہ ہے اگر راتوں کو جاگنا پڑ جائے عبادت کے لیے, عبادت الہی کے لیے, تو راتوں جاگ جاگ کے گزار رہا ہے. اور اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے سونا پڑ جائے تو سونا بھی بگڑ یہ ہے کلیت, یہ ہے کلیت. تو اب کس کنارے سے دیکھیں, کس زاویے سے دیکھیں, کس موڑ سے دیکھیں, جس زاویے سے دیکھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عظمت بندگی کیا ہے, آپ کو معلوم ہو جائے گا عبادت گزاری کا مطالعہ کیا ہے, یعنی اس کی اعلیٰ ترین منزل کون سی ہے. اور جب وہاں پہ آ جائے تو پھر میں جملے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ جملہ یہی تھا کہ اب یہ انداز زندگی ہے جہاں ہستی اپنی ٹوٹیلٹی میں نظر آ رہی ہے کہ اگر میدان جنگ میں دیکھو تو علم علی کے ہاتھ میں ہے, اگر میدان جنگ میں دیکھو تو علم علی کے ہاتھ میں, اور مقام سلو میں دیکھو تو قلم علی کے ہاتھ میں. یہ دیکھیں نا, یہ ہے بظاہر تعداد نظر آ رہے ہیں کہ کہاں میدان جنگ اور کہاں سلو نامے کا مقام, اور وہاں بھی کیا احترام رسول ہے, کیا احترام رسالت سامنے آ رہی ہے کہ اگر کوئی لفظ کاٹنا ہے تو اپنے آپ سے دسترس نہیں کر رہا ہے, جسارت نہیں کر رہا ہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا, یہ اپنے ہاتھ سے اس کو عمل کو انجام دیجیے. یہ ہے عظمت بندگی, یہ ہے احترام شخصیت. وہاں پوری کلیت کے ساتھ شخصیت سامنے آ رہی ہے. جب وہ کلیت کے ساتھ سامنے آئے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں وہ ایک مفہوم بتا رہے ہیں, ایک زندگی کے معنی بتا رہے ہیں. تو جب وہ کیفیت ہے تو پھر اب مجھے کہنے دیں کہ جہاں ہستی بندگی اپنی ٹوٹیلٹی میں سامنے آ جائے اس کا نام علی بن ابی طالب کا. درود پر محمد یہ عظمت بندگی ہے, یہ عظمت بندگی
ज़िंदगी है, ये मकसद ज़िंदगी है। क्या हो तुम्हें अगर मैदान जंग में देखना और मुझे देखो। हम नहीं कह रहे, तमाम लिखने वालों ने लिखा है, हत्ता क्या कहना चाहिए, बल्कि हमारे बहुत ही तारीख़ इस्लामी के बहुत ही नामवर मौर्रिख हैं और सीरत निगार हैं अल्लामा शिबली नोमानी साहब। जब वो बद्र का तज़किरा कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही हमारी मुरबजा ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बातें बयान करनी चाहिए। वो बयान कर रहे हैं कि हज़रत अली जो है वो बद्र के हीरो नज़र आ रहे हैं, बद्र के हीरो हैं। तो जब बद्र का हीरो आ रहा है तो मालूम होता है अब तो जहां भी वो होगा वो बद्र का हीरो नहीं बल्कि वो हर जगह बद्र कामिल नजर आएगा, वहां वो चांद नजर आता चला जाएगा। अब क्या बद्र का मैदान, क्या उहद का मैदान, क्या खैबर का मकाम, क्या खंदक का मकाम, क्या सुलो का मकाम, क्या शब हिजरत का मकाम, क्या किसी भी नौयत का मकाम, जहां जहां शजाअत का मुजाहरा वहां अली का नाम आता चला जाएगा। दुरूद पर मोहम्मद हर जगह अली का नाम आ रहा है कि वो बद्र कामिल सामने आता चला जा रहा है कि तो अगर सब्र का मकाम चाहिए तो मैं साबिर बन के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं शजाअत के माना को सब्र के माना से अलग नहीं करता हूँ। ये देखे ना, ये बात है, हमने तो शजाअत को अलग कर दिया, सब्र को अलग कर दिया। नहीं, सब्र शजाअत के साथ साथ है, सब्र शजाअत के साथ साथ है। और यहाँ पे मुझे मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ और आप मेरी फिक्र का साथ देंगे, गौर कीजिएगा। अगर शजाअत सब्र के साथ हो तो उसको गलतफहमी का शिकार होना मुमकिन हो जाता है, क्योंकि अब हम अभी आपने सलाम बार बार मैं डॉक्टर साहब की इजाजत के बगैर इनका हवाला दे रहा हूँ, इन्होंने अभी कहा कि आप आके सामने बात करो। आके सामने बात करने का मामला जो है वो और है, क्योंकि वो बहादुरी नहीं है किसी को पसे पुष्ट मार देना, कोई बहादुरी नहीं है। किसी को नाम बगैर बताए मार देना कोई बहादुरी नहीं है, वो तो एक बुज़दिलाना कैफियत है, वो तो एक बुज़दिलाना कैफियत है, वो तो एक दरंदगी की कैफियत है। तो यह जुमला कहना चाहूंगा कि दरंदगी शजाअत नहीं है, माज़अल्लाह, दरंदगी शजाअत नहीं, दरंदगी बहादुरी नहीं है, दरंदगी तो बुज़दिली है इंसान की, बुज़दिली है इंसान की। शजाअत और बहादुरी तो वहां हुआ करती जहां के सब्र होता है, वहां सब्र होता है। और यहाँ बगैर किसी रब्ते मसाइब के शेर पढ़ना चाहूंगा कि था सब्र भी शजाअत व हिम्मत के साथ साथ, था सब्र भी शजाअत व हिम्मत के साथ साथ, मशकीदा भर लिया मगर पानी पिया नहीं। ये देखे ना, ये है शजाअत और सब्र का मामला, इसका इश्तिराक, इसका इर्तिबात, इसका ताल्लुक, इसका मुंसलिक होना, मरबूत होना, ये कि था सब्र भी शजाअत व हिम्मत के साथ साथ, मशकीदा भर लिया मगर पानी पिया नहीं, कि शजाअत का मुजाहरा भी हो रहा है और सब्र का अमल भी हो रहा है। तो इसलिए अब वहां पे मालूम होता है कि शजाअत क्या है, बहादुरी क्या है। इसलिए अब जहां जहां अली नजर आ रहे हैं वो वहां बहादुरी के मानों में भी आ रहे हैं, वहां सब्र के मानों में, और सब्र बहादुरी के साथ साथ है, सब्र बहादुरी के साथ साथ है। जब सब्र बहादुरी के साथ हो तो मालूम हो जाता है कि अली जब जाग रहे हैं तब भी अली, अली सो रहे हैं तब भी अली जाग रहे हैं तब भी अली है, अली सो रहे हैं तब भी अली है। तो वो अब रिफ्लेक्शन है उसका कि हमने तुम्हें जमीन पर अपना नुमाइंदा बना के भेजा, हमने जमीन पर तुम्हें अपना तर्जुमान बना के भेजा, हमने जमीन पर, और वो लफ्ज यहाँ इस्तेमाल करूं, हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बना के भेजा, खलीफतुल अर्श बना के भेजा। जब ये तमाम तर मामला आ रहा तो फिर वहां इकबाल की फिक्र आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर मैं अपने जाहिर एक तालिब इल्माना सोच की बात कर रहा था कि कहारी, गफ्फारी, कुद्दूसी, जबरूत, ये सारे मामला क्या है। कहार अल्लाह की जात, गफ्फार अल्लाह की जात, कुद्दूस अल्लाह की जात, जबरूत अल्लाह की जात, लेकिन ये सारी सिफात अल्लाह ताला इंसानों में देखना चाहता है, इंसानों में देखना चाहता है, और इनको अलग अलग नहीं देखना चाहता, इनको यकजा होकर देखना चाहता है, इनको यकजा होकर देखना चाहता है। अगर देखें ना, इंसान की लियाकत को आप महदूद नहीं कर सकते, इंसान की काबिलियत को आपने इन टोटलिटी में, बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ आपकी इजाजत से, अंग्रेजी के लफ्ज को उमूमन मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन बहरहाल कभी भी हमारी रोजमर्रा ज़बान में, बल्कि यहीं पे मैं अंग्रेजी का लफ्ज एक और भी इस्तेमाल कर दूं कि अंग्रेजी के लफ्ज को उमूमन मैं अवॉइड करता हूँ अवॉइड को भी अवॉइड करना पड़ रहा है। तो अब ये लेकिन बहरहाल कभी कभी आ जाते हैं। तो इस लिहाज से आप देखें कि वहाँ आपको जिंदगी की कुल्लियत को देखना होगा, जिंदगी की मजमूई कैफियत को देखना होगा। तो वहाँ इंसान अगर आपने देखना है तो फिर आपने देखना है कि वो किस लिहाज से वहाँ पे, अगर तमाम तर कैफियतों, हमारे माशरे का मामला है, माशरे की लुगत अपनी होती है, माशरे का सलूक अपना होता है, और हमें उसको यकीनन यहाँ पे हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर दफ्तरी हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारी भी एक उम्र गुजरी है दफ्तरी ज़िंदगी में, और मेरे साथी भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मेरे बुजुर्ग भी, दोस्त भी सारे। देखते हैं कभी कभी लोगों को मवाजना किया जाता है दफ्तरों में बैठ के कि कौन काबिल है, कौन काबिल नहीं है, एक आम गुफ्तगू होती है, बड़ा अच्छा है, बड़ा ये। तो अक्सर एक बात बहुत मेरे मुशाहिदे में आई है कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि हाँ बहुत काबिल है। मैंने कभी कभी ये
भी सुना कि बहुत उम्दा अफसर है, बड़ा अच्छा है, बहुत काबिल है, क्या लिखता है, ऐसा नोट लिखता है कि बाद में कोई उसका जवाब नहीं दे पाता है, बड़ा अच्छा लिखता है, बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग है, बहुत अच्छा फैसला करता है, बड़ा नोट लिखता है, बड़ा बहर काबिल है, लेकिन थोड़ा बदतमीज है। तो फिर क्या है, कुछ नहीं, बेकार हो गया सारा मामला। अगर थोड़ा सा क्या भी बदतमीज है तो गया काम फिर तो मैं समझता हूँ टोटलिटी का मफहूम ये है, आपकी काबिलियत अंग्रेजी के लफ्जों में नहीं है, आपकी काबिलियत कागज पे बिखरे हुए हुरूफ में नहीं है, आपकी काबिलियत किताबों के नामों को याद करने में नहीं है, आपकी काबिलियत कहीं रोब व दबदबे को जाहिर करने में नहीं है, आपकी काबिलियत अपने आप को, अपनी जात को मनवाने के लिए अपने तमाम तर कामों को अंजाम देना नहीं है। अपनी बात को कहना ये सिर्फ काबिलियत नहीं है, दूसरे को सुनना भी काबिलियत है। इसलिए काबिलियत का म्यार बड़ा अजीब व गरीब है। दूसरे को आप माशाल्लाह मुझसे बेहतर तजर्बेकार यहाँ साहिबान तशरीफ फरमा है, आपने देखा होगा कि बाद औक़ात किसी शख्स का मसला मैं उसको सुन के हल हो जाता है। डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, आम बात भी कही जाती है कि अच्छा खासा मर्ज जो है वो तो डॉक्टर जो मरीज का मर्ज सुन लेता है तब उससे शिफा मिल जाती है। इसी तरह जब दरख्वास्त गुजार दफ्तर में आता है तो अगर आप उसकी बात को तवज्जो से सुन ले, मैंने अक्सर ये किया था, कभी कभी अपने मैं सीनियर अफसरान के बाद किसी को भेजा करता था तो उन पर पहले फ़ोन पे कह देता था इंटरकॉम पे कि सर आप जरा प्लीज़ पे कुछ कीजिएगा, नहीं पता आप इसको सुन लीजिएगा, बाकी मैं बताऊंगा करना क्या है आपको। मतलब ये वो सुन के बेचारा दुआएं देता था कि मुझे किसी अफसर ने सुन लिया है। ये बड़ी बात है, हमारे माशरे में सुनने का रिवाज तो है ही नहीं, और सुनने का रिवाज क्योंकि खत्म हो गया तभी तो आप देखें जो कुछ हो रहा है इसलिए हो रहा है कि आपने कहा ना कि आगे बात करो, आगे बात करिए तो सुनना पड़ेगा, कुछ कहना पड़ेगा, इसलिए वहां पे टॉलरेंस का मसला खत्म हो गया है। आपके दरमियान आपस में तमाम तर मामला खत्म होते जा रहे हैं। आज इसीलिए खत्म हो रहे हैं कि हमने सुनने का मामला तो खत्म कर दिया है। सुनने की शान और है, सुनाने का मामला और है। सुनने की शान भी अगर आपको मिलेगी तो इसी बारगाह में मिलेगी, इसी बारगाह में मिलेगी। अगर किसी ऐसे शख्स से भी बात कर रहे हैं जो मालूम है कि हमारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, उसके लिए आप कोई भी लफ्ज इस्तेमाल करें, वो गैर मुस्लिम है, वो आपकी बातों से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन अगर उससे मुकालमा कर रहे हैं तो क्या शान इमामत है, क्या शान इल्म है, क्या शान मदीनतुल बाबुल इल्म है कि जहाँ मालूम हो जाता है कि देखो तुम बात कहते रहो, बात कहते रहो, और वहां पर ये कहा जा रहा है कि क्या तुमने अपनी बात मुकम्मल कर ली। लेकिन ये है शान तकल्लुम, ये है मुकालमाती मुआशरे के लिए दावत फिक्र। आज सोसाइटी में डायलॉग की बात की जाती है, हमें इंटरफेथ डायलॉग की बात कही जाती है, इंटरफेथ डायलॉग को बढ़ाया जाए, बहुत काम हो रहा है, बहुत चर्चा हो रहा है। मेरे अक्सर अहबाब मुझसे बात करते हैं, हमारे माशरे में रहने वाले अफराद, वो कहते हैं कि हमें इंटरफेथ डायलॉग पे काम करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटरफेथ की बात तो पहले बहुत बाद में आती है, पहले तो हमें विद इन फेथ डायलॉग की बात करनी है। इंटरफेथ तो बात का मामला, पहले विद इन फेथ आपको करना है, पहले अपने आप को तो ताकतवर बनाए ना, विद इन फेथ। तो अगर विद इन फेथ ही आपको डायलॉग करना पड़ जाए तो फिर इंटरफेथ तो बात का मरना है। तो डायलॉग के मुआशरे में आइए इस बारगाह से सीखें जहाँ मालूम होती तो बारगाह, मैं कोई वो नहीं कह रहा मेरा अकीदा क्या है, मेरा ताल्लुक क्या है, मेरा फिक़्ह क्या है, मेरी वाबस्तगी क्या है, आपका क्या है, ये तमाम बातें अपनी जगह पे अहमियत की हामिल है। लेकिन एक फिक्री एतबार से, इंसानियत के एतबार से तारीख इंसानी का सारा मुताला करके देखते जाइए, इन हस्तियों को अगर जिंदगी मिली है, बका मिली है, क्या हर जगह इनका जिक्र हो रहा है, इसमें सारा मामला यही है, इन्होंने इंसान को इल्म दिया, इन्होंने इंसान को माशरत अता फरमाई, माशरत अता फरमाई है, हुस्न सलूक इनके बदौलत है, हुस्न सलूक इनकी बदौलत है कि कह रहे तुमने अपनी बात पूरी कर ली, कहा नहीं की, अभी और कहना चाहता हूँ, कहा अच्छा और कहो, बार बार कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, और जब ये कह दिया कि हाँ मैंने अपनी बात पूरी कर ली तो कहा अच्छा ठीक है, तूने अपनी बात पूरी कर ली, अब मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। ये है सिविलाइजेशन, ये है तहजीब तकल्लुम, ये है तहजीब तकल्लुम। आज के मुआशरे के लिए बहुत अहम नुक्ता फिक्र है। आज हम भी देखते हैं कि आपस में डायलॉग कैसे होते हैं, आज हम भी देखते हैं कि तकल्लुम कैसे होता है, लेकिन मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन एक उमूमियत की बात कह रहा हूँ कि बातों का तो गुफ्तगू सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन मालूम नहीं होता कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कह रहा है। हर एक की बात एक दूसरे से ओवरलैप होती चली जा रही है, एक जुमले पे दूसरा जुमला हावी आता चला जा रहा है। ये क्या है? ये है कि आप अपना इज़हार ख्याल तो कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे को सुनने पर आमादा नहीं है, आप दूसरे को सुनने पर आमादा नहीं है। जब दूसरे को सुनने पर आमादा हो जाए तो फिर ठीक आप अपनी बात को शुरू करें, लेकिन वहां एक ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाती है जहां सारे जुमले मिल जाते हैं और पता नहीं होता कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या नहीं कह रहा है। जब ऐसी गुफ्तगू आलम हो जाए तो फिर माफी ज़मीर बातें नहीं हो पाता है, और शायद मकसद भी यही होता है कि ठीक है जो कह रहा है कहते रहो, समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन आओ उस बारगाह में आओ जहाँ हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम
तुमने अपनी बात पूरी कर ली, अब मैं अपनी बात शुरू करूंगा। और फिर क्या तौहीद पे दलाइल दे रहे हैं, क्या उलूहियत पे दलाइल दे रहे हैं, क्या आखिरत पे दलाइल दे रहे हैं। और आपके सामने हैं, आप खुद मुताला फरमाते रहते हैं क्या क्या बातें कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि हाँ, अगर तू जो कुछ कह रहा है अगर वो सही है तो कोई बात नहीं, तेरा भी मामला वही और मेरा मामला भी वही। तूने कहा कि कोई मादल्ला आखिरत वगैरह नहीं है, कोई आखिरत का मामला नहीं है, तो ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, जो मेरे साथ है तेरे साथ। लेकिन अगर वो कि जो मैं कह रहा हूं वो सही हो गया और वाकई वो सही है, ये भी जुमला है, और वो सही हो गया और वाकई वो सही है और हाँ वो सही है, ये भी कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर मेरा आलम मुझे पता है किस तरह बरतर होगा और तेरा अजाब तेरा तुझ पे नाजिल होता चला जाएगा। यह है फिक्र का मकाम। वो कह रहा है कि आखिरत क्या होती, नाउज़ुबिल्लाह, आखिरत से इनकार कर रहा है। लेकिन मौला समझा रहे हैं कि अगर जो कुछ तू कह रहा है अगर वो सही है तो कोई नहीं, ठीक है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं, जब ये बातें उसने सुनी तो किताबों में लिखा है कि उसका आलम क्या हुआ कि उसके दिल में शदीद दर्द पैदा हुआ, उसके शदीद दिल में दर्द पैदा हुआ और वहां से कहले मुझे यहां से ले जाओ, और फिर वहीं उसका इंतकाल हो गया। यानी मौला की बातों का असर ऐसा हुआ कि दिल पे बैठ गया और असर कबूल कर लिया कि हकीकत वही है। और ऐसे बेशुमार वाकयात आपको मिलेंगे, बेशुमार वाकयात मिलेंगे, आप खुद पढ़ते रहते हैं, बच्चों के लिए मैं बयान कर रहा हूं कि ऐसे वाकयात आपको मिलेंगे कि वो कह रहा है कि खुदा तो कोई भी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा की वहदानियत को साबित किया जा रहा है, खुदा की तौहीद को साबित किया जा रहा है। हमारे उलमा ने बहुत इस पे बयान भी फरमाए हैं, बहुत इस पे लिखा भी है। लेकिन मैं यहाँ इख्तिसार से बातें कर रहा हूँ कि अगर मिसालें दी जा रही हैं, मिसालें दी जा रही हैं कि अगर एक इमारत तुम्हारे सामने है तो तुम्हारी निगाह और तुम्हारी फिक्र फौरन इस बात पे जाएगी कि इमारत किसने बनाई है, अगरचे इमारत बनाने वाला वहां नजर नहीं आ रहा है। ये मकान है, मकान के फौरन ये मकान किसने बनाया है, हमें नहीं पता इसका कौन बनाने वाला है, लेकिन फौरन निगाह की इस मकान किसने बनाया है। तो फिर वहां इमाम इस दलील के साथ जवाब दे रहे हैं, जिस तरह एक इमारत की तामीर का मामला है, इसी तरह कायनात की तामीर का मामला है, इसका बनाने वाला भी जो नजर नहीं आ रहा। दुरूद पर मोहम्मद नजर नहीं आ रहा है। और ऐसी बहुत सी बात हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम वो मिसालें देके समझा रहे हैं कि देखो, तुम अगर किसी कश्ती में सवार हो, आपने पढ़ा होगा, कश्ती में सवार हो, कश्ती में अगर कोई सुराख हो जाता है तो तुम पर क्या गुजरेगी, और तुम और दो बातें वहां पे बयान करें जो वहां पे शराइत है, कंडीशंस हैं। और शराइत ये है कि अब कश्ती में तुम्हारे सुराख हो गया, बेबसी का आलम है। अब वहां पे दो बातें ये बयान कर रहे हैं कि ना तुम्हारे पास कोई दूसरी कश्ती है और ना ही तुम्हारी पैराकी तुम्हारे काम आ रही है, ना वहां तैरना काम आ सकता है, ना तुम्हारा तैरना काम आता है, ना तुम्हारे लिए कोई वहां पे दूसरी कश्ती मौजूद है। तो फिर क्या होगा, बेबसी का आलम होगा। तो फिर अब तुम्हें वहां पे एक सहारा चाहिए, तुम्हें एक ऐसा चाहिए जो तुम्हें सहारा दे सके, जहां तुम्हारे लिए एक आसरा बन सके। अब ऐसी कैफियत में तुम्हें एक ताकत दरकार है, एक ताकत दरकार है। अब बताओ तुम उस ताकत को कहां तलाश करोगे। जब ये बातें बयान की गई तो फौरन उसने वहां पे एक कलमा पढ़ा, ईमान लाया, हज़रत इमाम के शान में वहां पे मदह कर रहा है, और वहां पे वो जो गैर मुस्लिम था वो मुस्लिम बन के सामने आ रहा है। दुरूद पर मोहम्मद बारगाह की खिदमतें ये है। तभी तो आप देखें ना कि जो जिंदा, अब जिंदा का लफ्ज़ भी बड़ा अजीब सा है, जिंदा तो वहां भी लिखा होता है, जहाँ मैं थोड़ी सी बाजार की ज़बान से मुराद मेरी ये मार्केट की ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, अक्सर मैं पढ़ता हूँ लफ्ज़ लिखा होता है मुर्गियों की दुकान पे कि जिंदा इतने की, और पता नहीं मुर्दा नहीं लिखा होता है, कुछ और लिखा होता है। तो जिंदा बड़ा भारी लफ्ज़, मुझे वहां पे जिंदा अजीब सा लगा होता है लिखते हुए। जिंदा का बड़ा भरपूर लफ्ज़ है। शौहरा कराम तशरीफ फरमाए, जिंदा तो बड़ी एक अजीब कैफियत है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आप चलते फिरते इंसान को जिंदा कहें, नहीं, साहिबान फिक्र को जिंदा कहते हैं, साहिबान एहसास को जिंदा कहते हैं, साहिबान जुरत को जिंदा कहते हैं, इंसान की हिम्मत रखने वाले को जुरत कहते हैं, जिंदा कहते हैं। जिंदा तो एक बड़ी अजीब कैफियत है। तो कुरान मजीद ने भी इसकी तशरीह की है कि ये जो इंसान है जो आपको नजर आ रहे हैं, जिनमें कोई जुरत नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई हरारत नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये चलती फिरती मैयतें नजर आ रही हैं, जलती फिरती लाशें नजर आ रही हैं। तो जिंदा की अलामत और है। तो वहां पे वो बहुत से ऐसे जिंदा इंसान होते हैं कि अब वो वहां पे जिंदगी ढूंढ रहा है, वो जिंदा हो रहा है, वो ईमान तलाश कर रहा है, वो ईमान तलाश कर रहा है। तो अब अगर आज ये जिंदा है, जिंदा, अब जिंदा का लफ्ज़ मैं इन मानों में नहीं कह रहा सिर्फ कि वो नजर आ रहे हैं, नहीं, जिंदगी की एक अलामत और शान वाली आ रही है कि नजर नहीं आ रहे मगर जिंदा है, नजर नहीं आ रहे मगर जिंदा है। ये जिंदगी की वो शान है कि जहाँ आए दुनिया और देखे, आके सोचे कि हम किनका तस्करा कर रहे हैं। हम उनका तस्करा कर रहे हैं कि जो हमसे नहीं कह रहे कि हमारे वसीले से दुआ मांगो, लेकिन हम दुआ मांग रहे हैं।
نہیں کہہ رہے کہ ڈاکٹر صاحب سے یا کسی اور شاعر سے تم سلام کہو، لیکن اندر سے ایک آواز آ رہی کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے اور کوئی میری بات کو قبول کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شان امامت ہے، یہ شان محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم ہے. یہ شان ہے، یہ شان امامت ہے، یہ شان اہل بیت ہے. یہ کسی نے کہا نہیں ہے. یہ بچے ماشاءاللہ یہاں بیٹھے، میں بچے کہہ رہا ہوں ظاہر ہے ماشاءاللہ میرے لیے بچے ہی ہیں کہ ان کے والد صاحب ماشاءاللہ کیا سوسوانی فرماتے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ظاہر ہے بڑا سرمایہ چھوڑ گئے. ان کا معاملہ تھا یہ اپنے اور کام میں لگے رہتے، کیا تھا معاذ اللہ نعوذ باللہ. لیکن کس نے کہا کہ نہیں، یہ سرمایہ کو زندہ رکھنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اپنی زبانوں کا تقدس جو ہے وہ قائم رکھنا ہے، اپنے لہجے کو قائم رکھنا ہے، اپنی باتوں کو آگے پہنچانا ہے. تو پھر اب سارے وقت نکالنے ہیں. ماشاءاللہ بھائی ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کبھی کہہ بھی رہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ کام کیسے تو بظاہر آسان لگتا ہے، پڑھنا ایک الگ کام ہے، لیکن سب کا ایک ساتھ پڑھنا ایک اور کام ہے. سارے کاموں کو چھوڑ کے وہ بھائی ماشاءاللہ اس کا اپنا الگ شعبہ ہے، ایک بھائی کا الگ شعبہ ہے، سب کو جمع کرنا ایک وقت پہ آنا، یہ بڑی خدمت ہے، بڑی خدمت ہے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی کہہ رہا ہے، آواز آ رہی ہے، بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن کہیں سے کوئی کہہ رہا ہے تم پڑھو اور میں تمہاری پڑھائی کو قبول کروں. یہ ہے، یہ قصیدے، یہ شاعری سب کچھ پہلے بھی ہوتی رہی ہے. بادشاہوں کے درباروں میں بہت کچھ ایک الگ مضمون ہے، یہاں میں تفصیل میں نہیں جا رہا. بادشاہوں کے درباروں میں بڑے قصیدے کہے گئے، آپ خود پڑھتے رہتے ہیں کتنے کتنے قصیدے لکھے گئے. لیکن آج وہ نہ بادشاہ نظر آ رہے ہیں نہ وہ قصیدے پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں. سب ختم ہو گئے، فنا ہو گئے. کوئی نہ، کیونکہ وہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ وہ وظیفے کی طلب میں پڑھ رہے تھے، انعام و اکرام کی خواہش میں پڑھ رہے تھے، کوئی ٹائٹل مل جائے، کوئی خطاب مل جائے اس کی خواہش میں پڑھ رہے تھے، ایک خوف کے تحت بھی پڑھ رہے تھے اگر ہم نے نہ کہا تو یہ ہو جائے گا. نہیں ایسا، وہ سارے قصیدے ختم ہو گئے، وہ قصیدہ خواہ ختم ہو گئے، وہ بادشاہ ختم ہو گئے، ان کے دسترخوان ختم ہو گئے. لیکن ہاں یہ بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں بظاہر کوئی نہیں کہہ رہا ہے، لیکن کوئی کہہ رہا ہے کہ تم پڑھو اور ہم اسے قبول کریں گے. درود پر محمد. یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ امام ہے کہ بچہ آتا ہے، چھوٹا سا بچہ. ہم بھی ظاہر ہم سب اسی طرح یہاں آئے ہیں کہ ہم نے بھی، ہماری ماں نے بھی کبھی ربائی کے لیے بٹھایا تھا پڑھنے کو، ہمارے والدین نے بھی ماشاءاللہ بچوں ہمارے سامنے سب لوگ بیٹھے ہیں، والدین نے باقاعدہ ممبر پہ بٹھایا تھا، ربائی پڑھو، سلام پڑھو، نوحہ پڑھو اور پھر تقریریں شروع کرو، اس طرح سے کرو. یہ سارا کام کیا ہے؟ مجھے یاد ہے، میں شاید کبھی دوستوں سے باتیں کرتا ہوں تو کہتا بھی رہتا ہوں کہ مجھے بھی میری والدہ نے ایک سلام پڑھنے کو بٹھایا تھا، اور وہ سلام تھا حضرت نجمہ افندی علیہ الرحمہ کا، اور وہ کتاب ابھی بھی میرے پاس ہے. اور اس کتاب میں جو صفحہ میں پڑھا کرتا تھا، وہ 2 صفحے ہوتے ہیں نا، ایک یہ اور ایک یہ، تو جو صفحہ میں پڑھتا تھا اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، بالکل وہ ڈارک ہے، اور دوسرا صفحہ کافی صاف ہے. اتنا پڑھا اس کو، اور میری ماں مرحومہ نے کہا تم یہ پڑھا کر. وہ تھا نوحہ، لیکن وہ سلام کی شکل میں مجھ سے پڑھواتی تھی. اور وہ تھا کہ ابھی تک یاد ہے اس کا ایک مصرع تو، رن میں اصغر تیر کھا کر رہ گئے. شعر مسئلہ یہ تھا، رن میں اصغر تیر کھا کر رہ گئے، مثل غنچہ مسکرا کر رہ گئے. یہ تھا. تو وہ بس ایک سراج کر گیا ہر بچے کے لیے. میں تو اپنی مثال تو خود خام کا بیان کر رہا ہوں، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بزرگ، اس کے پس منظر میں یہی سلسلہ نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ دیکھیں وہ اپنی جو تمام تر بزرگی ہے، وہ تمام تر جو ذکر کی فضیلتیں ہیں، دنیا نے کیا کچھ کوشش نہ کی کہ نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ کہ نام حسین رہ گیا اور مٹ گیا یزید. نام حسین رہ گیا اور مٹ گیا یزید. جو ختم کر رہے تھے وہ خود ہی فنا ہوئے. یہ ہے فنا و بقا. جو ختم کر رہے تھے وہ خود ہی فنا ہوئے. جن کو ختم کرنے کی ناکام کوشش ہو رہی تھی وہ باقی رہ گئے، قائم رہ گئے. اور جو ختم کر رہے تھے وہ ختم ہو گئے، فنا ہو گئے. جو ختم کر رہے تھے. تو اب یہ فنا و بقا کا فلسفہ سامنے آ گیا. تو اب وہ اس لیے ہے کہ وہ ساری زندگی ایک مجموعی شخصیت کا اظہار کر رہے ہیں، مجموعی شخصیت کا اظہار کر رہے ہیں. وہاں یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے دسترخوان جو اٹھا کے روٹیاں ساحل کو دے دی جائیں. یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. یتیم آ رہا ہے یتیم کو دے دی جائیں، مسکین آ رہا ہے مسکین کو دے دی جائیں، اور بچے بھی وہ جو بیماری سے اٹھے ہوئے بچے ہیں، اور دسترخوان بھی وہ جو منتوں والا دسترخوان ہے. وہ دسترخوان اس طرح سے کوئی آسان کام تو نہیں ہے. یہ شان ہے. اور کہاں کیسے دسترخوان سجائے گئے تھے اب وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن وہ دسترخوان
जो गरीब का दस्तरखान है। मैं गरीब की इस्तिलाह भी आपसे यहाँ पे आप सोचिएगा, हमने ये पूरी लुगत बनाने की जरूरत में, आज किसी दोस्त से बात कर रहा था, मैं कह रहा था लुगत करबला बनानी चाहिए, लुगत अहले बैत बनानी चाहिए, लुगत मासूम बनानी चाहिए। जो लिसानियात के माहिर हैं उनका एक शोबा है, काम है। सोचें, मुआशरे से अल्फाज को उठाएं और मुआशरे से अल्फाज को लेके करबला में देखें कि कितने अल्फाज हैं जो करबला से मखसूस होकर रह गए हैं, कितने अल्फाज जो अहले बैत की जात से मुंसलिक होकर रह गए, उनको उठाएं तो मालूम होता है कि अब ये गरीब का लफ्ज भी हमने अपने आम मानों में कुछ और कह दिया। जिसके पास पैसा नहीं है हम उसे गरीब कहते हैं, उसे हम गरीब कहते हैं। लेकिन आप देखें, तारीख इंसानी का मुताला करें और तारीख अहले बैत का मुताला करें, तारीख मासूमियत का मुताला करें तो मालूम हो जाता है कि सबसे बड़ा गरीब होता है जिसको आज तक दुनिया जनाब अमीर कह रही है। सुभान अल्लाह। ये है अमारत का सिलसिला कि अब आपने अगर जनाब अमीर कह दिया, अब कोई पूछेगा नहीं आपसे आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। जनाब अमीर का मतलब ये, जनाब साहिल लखनवी साहब बुजुर्ग शायर, उनका एक शेर मुझे बहुत ज़ाहिर है और भी अशार बहुत पसंद है, लेकिन एक शेर खास तौर से पसंद है, वो ये हजरत अब्बास के हवाले से उन्होंने कहा था कि मदह अब्बास, क्या शेर का है, मदह अब्बास की जो जलालत है और जो उसकी जिम्मेदारी है उसको बयान कर रहे हैं कि मदह अब्बास और मुश्ता फकीर, ये है कैफियत कल्ब कि मदह अब्बास और मुश्ता फकीर अल-मदद जनाब अमीर। मदह अब्बास और मुश्ता फकीर, कहाँ मैं और कहाँ बात कर, मदह अब्बास और मुश्ता फकीर अल-मदद जनाब अमीर। तो अमीर वो कि जो गरीब तरीन, ऐसा गरीब जो हमारी इस्तिलाह के तहत ऐसा गरीब कि जो अगर रोटी तोड़ रहा है तो अपने घुटने से रोटी तोड़ रहा है और देखने वाला देख रहा है कि कौन है, लेकिन मालूम नहीं कि अमीर इतना है कि सारी की सारी कैफियतें इसके पास है, सारी की सारी कैफियतें इसके पास है, लेकिन सारा कुछ सबके लिए है, अपने कुछ लिए सब कुछ यही है जो कुछ है। ये है अमीर और गरीब का मामला। हमने दौलतमंद, हमने अमीर उसको कह दिया जिसके पास पैसे ज्यादा है, बड़ा अमीर आदमी है, पैसे वाला है। गरीब कौन है? जो बहुत बेचारा गरीब है, कम दौलत है, कम पैसे वाला है। बाकी लुगत में भी इसके बहुत से माना है, उन सारे मानों को हमने अलग रख दिया, लेकिन अब इन मानों को पकड़ ले, लफ्ज में अपने आप को ले लेते हैं कि ठीक है गरीब वो है जो कि बिल्कुल बेचारा ऐसी है, फारिग तमाम चीजों से कोई वसाइल नहीं है उसके पास, और अमीर वो है जिसके पास सारे वसाइल मौजूद है। ये भी हमारी वो है। फिर अंग्रेजी की बात आ गई, मुझे माफ कीजिएगा कुछ बातें याद आ जाती हैं। हमारे एक दोस्त थे और वो हमारे साथ पढ़ा करते थे और यूनिवर्सिटी में, और वो अपनी कहीं मुलाजमत भी करते थे, किसी स्कूल में शाम को पढ़ाया करते थे। बड़े माशाल्लाह बहुत ज़हीन तालिब इल्म थे, इतने ज़हीन थे कि अक्सर हम उनसे कहा करते थे कि वो इंग्लिश में मास्टर्स कर रहे थे कि वो नावल भी कोर्स में है, वो भी पढ़ना है, इम्तहान बहुत करीब है। यानी वो तो नावल बहुत बड़ा है और इम्तहान बहुत करीब है, हम ये नावल इम्तहान के बाद पढ़ेंगे आराम से इसको, इतने काबिल थे। तो बड़े ज़हीन दोस्त थे हमारे, कहते थे इम्तहान के बाद पढ़ूंगा ये आराम से। तो लेकिन बहरहाल तो वो कह रहे, वो स्कूल में जॉब करते थे शाम को और यूनिवर्सिटी में हमारे साथ पढ़ा करते थे, हमसे थोड़े बड़े थे उम्र में वो। तो एक दिन कहने लगे कि मैंने एक बच्चों से काम लिया, उनका काम चेक किया, ज़ाहिर है एक बच्चे की कॉपी पे मैंने देखा सही नहीं लिखा उसने, मैंने उस पर लिख दिया वेरी पुअर, बहुत ख़राब लिखा उसने। वो जनाब अगले रोज़ कहने लगे, सारा मोहल्ला आ गया वहाँ स्कूल में और जनाब हेड मास्टर से मिला कि साहब ये क्या, अगर हम गरीब हैं तो हमारी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, आप कापियों पर लिख रहे हैं वेरी पुअर वेरी पुअर वेरी पुअर। तो बेचारे नाराज हो गए कि आपने हमारी कॉपी पे वेरी पुअर क्यों लिख दिया, हम गरीब हैं, हमें पता है, हमने आपने भेजा ही इसीलिए कि हम गरीब हैं, आपके स्कूल पे गरीब है, तो हमने तो इसलिए भेजा है। तो वह बेचारे बड़े परेशान हो, मैंने वेरी पुअर क्यों लिखा था। तो मतलब हम तो लुगत को भूल जाते हैं ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हमने अमीर गरीब का मामला भी ऐसा कर दिया। ऐसे और बहुत से अल्फाज हैं, लुगत को जमा करें तो मालूम होगा आपको कि लुगत के अपने मानी हैं। तो ये लुगत करबला एक अलग शब्द, एक मजमून है। अब वहां पे जब सामने आती बात तो मालूम होता है कि गरीब वो है, कि गरीबुल वतन वो है, गरीबुल वतन वो है जो बता रहा है गुर्बत के माना क्या है, गुर्बत के माना क्या है। सब कुछ इख्तियार में है, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे सर पर सुजूद होकर बता रहा है मुझे, मैं चश्मे के पानी के चश्मे जारी करा सकता हूँ, लेकिन मुझे प्यासा रहने पे फख्र है। ये है गुर्बत, ये है गुर्बत। ये है कब्र मुस्तफ़ा के मुजाबिर तेरे निसार, ऐ दीन हक के हामियों नासिर तेरे निसार। ये मीर अनीस ने एक मरसिये में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से अपने भाई से मुखातबत बयान की है मीर अनीस ने। तो वो चंद मिसरे इस तरह से थे कि कब्र मुस्तफ़ा के मुजाबिर तेरे निसार, बहन कह रही है भाई से, ऐ दीन हक के हामियों नासिर। क्या अल्फाज है कि लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा।
اے قبر مصطفیٰ کے مجاور تیرے نثار، اے دین حق کے حامی و ناصر تیرے نثار. اور لفظ غریب سے چونکہ یاد آ گیا، اے بے کسو غریب مسافر تیرے نثار، اے بے کسو غریب مسافر تیرے نثار. اے تشنہ کامو، اے تشنہ کامو بے کسو مطر تیرے نثار. آئے تھے کربلا میں مصیبت کے واسطے، بیت دیکھیے گا، آئے تھے کربلا میں مصیبت کے واسطے، ایک دن میں گھر لٹا دیا امت کے واسطے. بیت سنانے کے لیے آپ کو اور لہجہ سنانے کے لیے، اے بے کسو غریب مسافر تیرے نثار، اے بے کسو غریب. یہ ہے، یہ غربت ہے، یہ غربت ہے. امام نے بتایا غربت کسے کہتے ہیں، امام نے بتایا غربت کیسے کہتے ہیں کہ سب کچھ اپنے اختیار میں ہے لیکن اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پیاسا ہونا گوارا کر لیا. کیا حسین چاہتے تو چشمے جاری نہیں ہو سکتے تھے؟ یقیناً. لیکن امام بتا رہے ہیں کہ پیاس العطش کربلا کی آواز ہے، کربلا کی آواز ہے العطش. اور میں کہتا ہوں کہ کربلا کی آوازوں کا بھی ایک عنوان ہے. کربلا کی آوازیں یوں تو اور بہت سی ہیں، لیکن دو آوازیں کربلا کی بہت اہم آوازیں ہیں. ایک العطش کی آواز اور ایک حل من ناصر. لکھنے والے لکھیں، اور دونوں آوازوں میں یقیناً غربت ہے لیکن طاقت ہے، تنہائی ہے لیکن طاقت ہے، بے بسی ہے، بے کسی ہے. بے بسی نہیں ہے، بے کسی ہے. بے بسی اور ہے، بے کسی اور ہے. امام بے بس نہیں ہے، امام بے کس ہے. بے کسی ہے لیکن طاقت ہے. حل من ناصر ینصرنا کی آواز تنہائی کی آواز ہے، لیکن تنہائی کی طاقت کو امام بتا رہے ہیں. اور ادھر العطش کی آواز ہے، پیاسے ہیں، بچے پیاسے ہیں، ششماہے پیاسے ہیں، کم سن پیاسے ہیں. مولا آپ کی پیاس دنیا میں مثال بن گئی. اگر کہیں مثال کے طور پہ کہیں پانی کے نہ ہونے کو بیان کیا جاتا ہے تو کربلا بیان کی جاتی ہے. کربلا محاورہ بن گیا، کربلا استعارہ بن گیا، کربلا ایک مثال بن گئی. یہاں پہ مجھے حضرت علامہ علی نقی صاحب قبلہ اللہ مقاموں کی ایک تحقیق یاد آ جاتی ہے. ان کا اپنا انداز بیان تھا اور انداز تحریر بھی. وہ کیا پہلو بیان کرتے تھے. اس حوالے سے بات آ گئی پیاس کے حوالے سے تو علامہ کے ایک جملے سے استفادہ کر رہا ہوں. علامہ اللہ مقاموں نے فرمایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین پیاسے تھے. یقیناً پیاسے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے حسین اور حسین کے ساتھی صرف پیاسے تھے اور بھوکے نہیں تھے. حالانکہ بھوک اور پیاس کے لفظ استعمال عموماً ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو حضرت علامہ کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ ایسا کچھ ملتا ہے کہ بھوک کا تذکرہ نہیں ہوتا، پیاس کا تذکرہ ہوتا ہے. ظاہر شدت پیاس اور کیفیت کرتی ہے، شدت بھوک اور کیفیت کرتی ہے. پیاس کا تذکرہ ہے، پیاسے تھے. لیکن علامہ نے کیا جملہ کہا ہے اور کیا اپنی تحقیق بیان کی ہے. اور تحقیق یہ بیان کی ہے کہ بھوک کا تذکرہ جو ہے وہ اور معنی رکھتا ہے اور پیاس کا تذکرہ اور معنی رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر انسان خوددار ہے، اگر انسان میں اپنی عزت نفس ہے، تو اگر وہ پیاسا ہے تو پانی مانگ لے گا، بھوکا ہے تو روٹی نہیں مانگے گا. یہ ہے پہلو، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا، یہ ہے علم کی ترسیل کہ اگر پیاسا ہے تو دروازے پہ دستک دے کے بھی پانی مانگ لے گا، ایک گلاس پانی پلا دو. کربلا میں تو العطش کی آوازیں آ رہی، لیکن حسین پھر بھی سوال آپ نہیں کر رہے تھے. اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ جناب علی اصغر کے لیے وہ پانی مانگنے گئے تھے، لیکن وہاں بھی تاریخ کے طالب علم شاید کہہ سکتا ہے کہ پانی مانگنے نہیں گئے تھے، ان کے ظلم کو دکھانے گئے تھے کہ دیکھو ادھر تشنا لبی آ رہی ہے اور ادھر سے تیر آ رہا ہے. یہ ہے، دنیا کو بتانے آئے تھے. پوری کربلا دنیا کو بتانے کے لیے تھی، ظلم کو بے نقاب کرنے کے لیے تھی. اگر سب کچھ مدینے میں ہو جاتا تو ویسے ہی ہوتا جیسے ہوتا رہتا تھا. حسین کے سامنے مدینہ موجود تھا، مدینے کے سانحات موجود تھے، مدینے کے واقعات موجود تھے. لیکن امام نے کہا میں تاریخ کے سبق کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا آگے بڑھ رہا ہوں. تاریخ کو حسین آگے بڑھانے کو کہہ رہے ہیں، آگے بڑھانے کو کہہ رہے ہیں. ایک الگ مضمون ہے، مظاہر ہے یہاں پہ اتنا کہہ کے صرف یہاں پہ مجلس کو منزل آخر پہ لاؤں گا. آخر بھی ان معنوں میں استعمال کر رہا ہوں کہ آج کی مجلس کی حد تک. تو وہ یہ ہے کہ امام علی مقام نے، علامہ علی نقی صاحب فرماتے کہ پیاسے بھی تھے اور بھوکے بھی تھے. مگر ہائے کیا پیاس کا معاملہ ہے کہ العطش کی آوازیں اور حل من ناصر ینصرنا کی آوازیں. کربلا میں پانی بند ہوا،
करबला में पानी बंद करने का तमाम हुआ, 3 मुहर्रम 2 मुहर्रम, खैमे यहाँ न लगाओ वहाँ लगाओ, क्या जुल्म है देखे ना। यानी पढ़ने वाला पढ़े, सुनने वाला सुने तो खुद ब खुद कहे क्या क्या जुल्म हुआ कि खैमे लगाने पे एतराज किया जा रहा है, कहीं पानी के पास खैमे न लग जाए। तो अब यहाँ पे बंदिशे आपकी तैयारियां तो आगाज मुहर्रम से है, लेकिन हाँ 7 मुहर्रम से मुकम्मल पानी बंद हो रहा है। हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, हुसैन की बच्चियां, और वाक़े करबला में तो ऐसे लम्हात भी नजर आते हैं कि सकीना प्यासी रह गई मगर करबला की जमीन को प्यासा ना छोड़ा। क्या बात है। राह कूफा में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किसके तशद्दुद। करबला सिर्फ करबला पे खत्म नहीं हुई है, करबला सिर्फ करबला पे खत्म नहीं हुई, यानी करबला सिर्फ सरजमीन करबला पे खत्म नहीं हुई, करबला तो आगे बढ़ रही है, करबला तो आगे बढ़ रही है। करबला महज करबला की सरजमीन पे खत्म नहीं हुई। वो है ना कि हदीस इश्क दुबाबस्त करबला व दमिश्क, हदीस इश्क 2 बाब चैप्टर्स वाले बाब, दरवाजे वाला बाब और ये चैप्टर्स वाला, बच्चों के लिए कह रहा हूँ। हदीस इश्क क्या इस्तिलाह इस्तेमाल की है, हदीस इश्क दुबाबस्त करबला व दमिश्क, यके हुसैन रकम करते दी करे ज़ैनब। एक चैप्टर को हुसैन ने लिखा है, एक चैप्टर को ज़ैनब ने लिखा है। हदीस इश्क 2 बाबस्त, 2 चैप्टर, 2 बाबस्त, एक करबला है एक दमिश्क है, एक की मुसन्निफा, एक के मुसन्निफ हुसैन है, एक की मुसन्निफा ज़ैनब है। यके हुसैन रकम करते दी करे ज़ैनब, और एक ज़ैनब ने लिखा है, शाहज़ादी ज़ैनब आप इमाम अली मकाम की शहादत के बाद किन किन मुसीबतों से गुजरी हैं, क्या क्या मसाइब बर्दाश्त किए हैं। मैं कहता हूँ कि मवादा नहीं करता, फिर अल्लामा अली नक़वी साहब क़िबला की एक फ़िक्र से इस्तिफ़ादा कर रहा हूँ, और मैं अक्सर कहा करता हूँ और आप भी मेरी इस बात में यकीनन तायीद करेंगे कि हम अपने दौरे कदीम के उलमा और मुफस्सिरीन की अक्सर राय को उनके नाम से मंसूब कर देते हैं और बयान करते हैं, मकालों में भी लिखते हैं, लेकिन हमारे अपने दौर के जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे ज़ाकिरीन हैं, कुतबा हैं, उनके जुमले अक्सर हम अपनी तकरीरों में खुद भी बयान कर देते हैं। खैर बयान करना चाहिए, लेकिन और बेहतर होगा अगर उनके नाम से बयान कर दिया जाए, क्योंकि वो भी मुफक्किर हैं, वो इस वक्त के बहुत अहदाफरी मुफक्किर हैं, हर दौर के फ़िलॉसफर हैं, हर दौर के थिंकर्स हैं। तो अब जहाँ जहाँ अगर अल्लामा रशीद रावी साहब का जुमला किसी को याद आ जाए तो उनके नाम से बयान करना चाहिए, क्योंकि वो इस दौर के बहुत बड़े खतीब हैं, इस अहद के बहुत अहम एक मुफक्किर हैं। अल्लामा अली नक़वी साहब का कोई आए तो फ़ौरन बयान करना चाहिए। हत्ता कि हमारे जो जिन्हें हम लिविंग स्कॉलर्स कहते हैं, अगर कोई जनाब गरबी साहब का जुमला सामने आए तो उनके नाम से लेना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर एक फ़िक्र सामने आ रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्लामा अली नक़वी साहब क़िबला जो हैं वो इस लिहाज से वहाँ पे बता रहे हैं कि किस अंदाज से हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम अपने आप को प्यास का भी दिखा रहे हैं, भूख का भी दिखा रहे हैं, सारे मामलात वहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन करबला में जब हुसैन इस तरह जा रहे हैं तो वहाँ पे बीबी ने किस तरह हम मसाइब बर्दाश्त की हैं, किस तरह मुसीबतें उठाई हैं। अल्लामा अली नक़वी साहब क़िबला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि करबला में जो शहीद हो गए ना, उनका बहुत अजीम मुकाम है, बहुत अजीम मुकाम है। मैं उसको अपने जुमलों में बयान कर रहा हूँ, बेअनी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाता, लेकिन इतना कहूँगा कि फ़िक्र ये है कि करबला में जो शहीद हुए हैं वो शहीद वहाँ पे बहुत अज़मत के हामिल हैं, लेकिन उनके मसाइब व आलाम जो है वो तब तक हैं जब तक वो शहीद हुए हैं। लेकिन जो असीरान करबला है उनके मसाइब का नहीं पता कि कहाँ उनकी हद पहुँच रही है। ये है रिसर्च अल्लामा अली नक़वी साहब क़िबला की। क्या वहाँ पे मालूम होता है। तो अब मैं अक्सर जब शुहदाए करबला की बात आती है तो जब ज़ाहिर है शहीदों के नाम लिख दिए जाते हैं कि करबला में ये शहीद हुए, लेकिन मैं अपनी तालिब इल्माना सोच का लफ्ज़ इस्तेमाल बार बार कर रहा हूँ। मैं अपने तौर पर तालिब इल्म समझते हुए मैं शहीदों के नाम में चंद एक नाम और शामिल कर देता हूँ और आप भी शामिल करेंगे। और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगरचे हज़रत सैयद सज्जाद करबला में शहीद नहीं हुए, करबला में शहीद नहीं हुए, लेकिन सैयद सज्जाद किसी शहीद से कम तो नहीं है, किसी शहीद से कम तो नहीं है। और बात को वाज़ेह किया जाए, एक शहादत वो है जो तीर और तबर से होती है, नेज़ो तलवार से होती है, और एक शहादत वो है जो जंजीर से होती है, जंजीर पहनकर होती है, तोक़ सलासल पहनकर होती है। और जुमला कहूँ और अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को बेमखना चादर देकर शहादत दी जाती है। सैयद सज्जाद शहीद करबला है। सैयद सज्जाद इस अंदाज से शहादत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो मैं इस अंदाज से शहादत दे रहा हूँ। करबला
ایک کربلا سرزمین کربلا پہ ہو رہی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے. ہائے وہ وقت کیا ہوگا جب بازار کوفہ ہے اور راہ کوفہ ہے اور سیدہ زینب ہے اور لوگوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے. اچھا بدل لفظ لکھے کتابوں میں، وہ لفظ پیدا نہیں کرنا چاہتا. ہماری تہذیب ازا اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان لفظوں کو دہرائیں. لیکن کیا کریں، لوگ کس طرح وہاں روٹیاں پھینک رہے ہیں، چیزیں پھینک رہے ہیں، ارے صدقہ دے رہے ہیں اور یہ آوازیں دے رہے ہیں. ارے تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں، ہم پہ صدقہ اس طرح جائز نہیں ہے. آئے سوزگاروں اسی عالم میں کیا دیکھا، بس مجلس اپنی آخری منزل پر کیا دیکھا کہ ایک خاتون آئی، قریب آئی، قریب آ کے کہا یہ بچی کون ہے، یہ بچی کون ہے، یہ بچی کیا بیمار ہے، یہ بچی کیا بیمار ہے. شہزادی زینب نے کہا بیمار تو نہیں ہے، ہاں البتہ اپنے باپ کی جدائی میں اور مصائب و آلام برداشت کر کے یہ حالت ہو گئی ہے. جب سنا کہ یتیم بچی ہے تو خاتون نے کہا ایک میری درخواست ہے کہ میری 2 دعائیں ہیں اس بچی سے کروا دو، کیونکہ کہتے ہیں کہ یتیم کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. شہزادی زینب نے کہا کہ اچھا کیا دعائیں ہیں؟ کہ ایک دعا تو یہی ہے کہ کوئی بچہ ایسا یتیم نہ ہو جیسے یہ بچی یتیم ہوئی. بچہ ہمارا کوئی ایسا یتیم نہ ہو جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے. اور دوسری دعا سننے کی تاب لائیے گا. اور بس مجلس تقریباً اختتام پر ہے اور وہ دعا یہ تھی کہ شہزادی بی بی ایک دعا میں اور منگوانا چاہتی ہوں، اور وہ دعا یہ ہے کہ میری بڑے دنوں کی آرزو ہے کہ میں مدینہ چلی جاؤں، میں مدینہ چلی جاؤں. ہاں یہ سننا تھا. تو شہزادی نے پوچھا کہ تم مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو، کیا ہے، کس کو دیکھنا چاہتی ہو، کس سے ملنا چاہتی ہو؟ کہا میں جا کے اپنی شہزادی زینب سے ملنا چاہتی ہوں، میں شہزادی زینب سے ملنا چاہتی ہوں. یہ کہا تو زینب نے اپنے بالوں کو اٹھایا اور کہا تم بتاؤ تم کون ہو. اور معلوم ہوا یہ تو میری آزاد کردہ کنیز ام حبیبہ ہے. اور بی بی زینب نے کہا ارے میں شہزادی زینب ہوں، ارے مجھے یاد آ رہا ہے یہی کوفہ تھا اور کوفے کی رئیسوں کی بیٹیاں آتی تھی، میں اپنی چادر پھیلا دیا کرتی تھی اور وہ کہا کرتی تھی ارے آپ کی چادر پہ ہم نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ہائے آج چادریں نہیں ہیں. کہا کوئی میرے لائق خدمت کا چادریں لا دو. چادریں آئی تو نیزوں سے چادروں کو چھین لیا گیا. ہائے زینب بے مکتو چادر رہ گئی. ہائے ام کلثوم، ہائے سکینہ، ہائے کربلا کی بیویاں. اللہ یہ مجلس، یہ بیان، یہ تلاوت قبول فرما. اس خلوص سے، جس محبت سے یہ صفحہ ازا بچھائے گی، پروردگار اسے شرف قبولیت عطا فرما. ہم سبھی اپنے طور پہ حسب استطاعت عزاداری میں حصہ لیتے ہیں، لیکن خصوصیت یہ گھرانہ تو بہت آگے ہے عزاداری میں، ماشاءاللہ سبھی اس میں بہت نمایاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی خدمات کو قبول فرمائے. یہ گھرانہ ہمارا ہر گھر علم کا گھرانہ ہے، لیکن جب میں اس گھر میں آتا ہوں، جب بھی سوچتا ہوں، مجھے بڑا ظاہر ہے ایک تقویت ملتی ہے کہ جہاں علم کا اتنا ماشاءاللہ مرتبہ ہے کہ میں بھی کہہ رہا تھا کہ پوچھنا پڑتا ہے کہ کون سا بچہ جو ڈاکٹر نہیں ہے. والدین کتنے عظیم، کتنی عظمتوں کے حامل، کیا تعلیم کو عروج دیا اور کتنی بچوں کی تربیت کی مثالیں قائم کی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور زیادہ پروان کرے. اس خانوادے کو، اس گھرانے کو بردگار مزید کامیابیوں سے نوازتا ہے. آج یہاں جو جو آیا ہے یا جو جو نہیں بھی آ سکا ہے، پروردگار سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اور وہ دیکھیں، میں بھی کہہ رہا تھا لغت کا اپنا مقام ہے، اپنی اہمیت ہے. پھر ایک لفظ میری زبان پہ آ رہا ہے، اگرچہ عام زبان کا لفظ ہے لیکن مخصوص ہو گیا ہے اس یہاں کی ادائیگی سے، اور وہ لفظ زبان پہ آ رہا ہے حاضری. پروردگار ہماری حاضری کو قبول کرے.
हमारी हाजत को कबूल फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। हमारे दरमियान मोहब्बत व खुब्बत को फरोग़ अता फरमा। जहाँ जहाँ भी मोमिनीन कराम में मोमिनात उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए। जो शहदा हैं उनके दर्जात को बुलंद कीजिए। पाकिस्तान में, तमाम आलम इस्लामी में, तमाम आलम इंसानियत में अमन व अमान को परदिगार आम कर दे। जो अमन के दुश्मन है परदिगार उन्हें फिन्नार कर दे, खात्मा कर दे, भला कमा कर दे। परदिगार हम जो भी कर रहे हैं अपनी बिसात के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमा, हमारी कोताहियों को नज़रअंदाज फरमा, हमारी दस्तर हमारी तमाम तर इस्तिताअतों में इज़ाफ़ा फरमा। हम सबको हज व ज़ियारत की सादतों से नवाज़ फरमा। हमारे बच्चों को इल्म के रास्ते में नुमायाँ कामयाबी। हम बाबुल हवाइज में हाजिर परदिगार जो जहाँ जहाँ तलाशे हुसूल रिज़्क़ में मसरूफ़ है उन्हें कामयाबी अता। हमारी बच्चियों परदिगार उनकी मुश्किलों को आसान फरमा, कामयाबी अता फरमा। हमारे वालिदैन जहाँ जहाँ हम सबको परदिगार उनका साया अपने औलाद पे घराना, असातिज़ा का, उलमा का साया तादे सरिया, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार व अमान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।